Okay, so Alhamdulillah Rabbil Alameen for reconnecting again. So as I was mentioning a little bit ago that okay, the purpose of knowledge is to see a change in ourselves, right? Not in you we are not given a license to correct other, to evaluate other, to judge others. Rather, all these arrows should be pointing towards ourselves. And that is a success as a Quranic student. So let me go over the ayahs of Surah Nisa that we have been covering in our weekly lessons. And inshallah, let's see if there is anything that I am going to take with me today. So I am really wanting to make sure that we are going to take something with us today. And with every lesson, it's not about only today, but with every lesson, we should be reflecting on ourselves and see लिया क्या इसमें से, right? ऐसा आपको ये पता होना चाहिए कि even in the Quran it is mentioned about the people of book, like many of them can act like, or we can act, it can be a journal idea too. We should not be acting like himar with a lot of knowledge on us. What is himar? Himar is a donkey, meaning we are gaining something, but absolutely there is no change in us. So, inshallah, with that intention, let's purify that intention one more time and make sure that we are keeping ourselves very goal oriented. And inshallah, I'll be talking about that too in a little bit. And inshallah, let's start. Alhamdulillah Rabbil Alameen that we are here. So let me start, say the dua, and inshallah, then we can start. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem, amma ba'd, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, ameen ya rabbil alameen. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. So let's see what ayahs we have been covering. So I'm just gonna take over, like go through the lesson and review, and then inshallah we will be talking about the particular things in the ayahs from these recent lessons. So, in ayah number 148, we learned Allah subhanahu wa ta'ala does not want, does not appreciate, He does not love, He does not like the mention of the su except from the one who is being done harm to. Meaning जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो बात करे, otherwise उसका जो नशर करना होता है सू को, meaning बुराई को, it's not recommended, it's not what Allah loves, right? वकान अल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला again इसी बात को reinforce करते हुए he is mentioning to us, he is Samian Alima. He knows and he's listening. Whatever phonic discussion you have with your friend or texting, he's all aware of that, right? If you hide and if you are whatever you are doing in this ayah 149, we Alhamdulillah, just look at the ayah and be very proud of yourselves that you, Alhamdulillah, many of you are able to do word to word translation and pick what is being talked about. So अगर आप उसको छुपाते हैं, whatever you do, Allah subhanahu wa ta'ala is afuwan qadira. He has ability, and with this ability, he's the one who does the afu, which is the degree next to forgiveness, right? It is to forgive, it's to pardon lovingly. इन्ना लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार करते हैं और उसके मैसेंजर्स का, और वो ये चाहते हैं कि वो युफर्रिकु बैन अल्लाह व रसूलिही व यक़ूलूना नुमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, वो कुछ को करेंगे हम, meaning कि we are going to believe in some and we are not going to believe in part of the book, and we are going to pick and choose. अंत यत्तखिज़ु बैना ज़ालिका सबीला, और वो चाहते हैं कि दरमियान में से कोई रास्ता निकालें. उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, these are the ones who are the kafirun. And सुभान अल्लाह, and इनके लिए अल्लाह सुभान मेंशन कर रहे हैं कि we have prepared for the kafirun बिल्कुल अजाबन, which is मुहीना, which is humiliating अजाब. वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर यकीन रखते हैं, believes in Allah and His Messenger. वलम युफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, और जो उन रसूलों में से कोई तफरीक नहीं करते, they do not have their own criteria and they're like, this is from our generation, so we are going to believe in him and we are going to reject. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, these are the ones He will give them their ajr. Wa kana Allahu ghafurur rahim, and Allah subhanahu wa ta'ala has always been ghafoor, and always being I should say, He is very forgiving and is always merciful, right? So may Allah subhanahu wa ta'ala give all of us the ability to look at the names of Allah subhanahu wa ta'ala used. You are going to see in Surah Nisa, lots of names are used, and subhanallah, very different, very fascinating combinations are being used. And inshallah, we will be, may Allah subhanahu wa ta'ala reach us that
level where we are able to connect the names. Why गफूर के साथ रहीम, why कदीर के साथ कोई like why these specific combinations, why not this and why not that, right? So for now we are inshallah going to focus on the superficial meaning, and then inshallah we'll go to deep as we become better and better. अच्छा जी, अब आगे हमने पढ़ा था आय नंबर 153 में। अब आप लोगों ने ये वाली बात इसको याद रखिएगा। यू नो व्हाट, आई वांट ऑल ऑफ अस टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, स्टोरीज इन द कुरान, स्टेटमेंट्स इन द कुरान आर नॉट for just the sake of telling us. It is not, it's not just the statements. It is mentioned so that we can reflect on it and make sure हम ऐसी बातें ना करें, right? We should not have the same like attitude. This is why the story of Bani Israel is mentioned in juz number, like in your surah number 2, right? और काफी लंबी explanation थी people of book की। ऐसी था ना, हमने पढ़ा था, काफी ज्यादा हमने उनके मुतालिक पढ़ा, काफी लंबी डिस्कशन आई मुनाफिकीन की। व्हाई आर वी बीइंग टोल्ड अबाउट मुनाफिकीन, पहले क्यों बात हो रही है उसकी, क्यों? दैट इज टू मेक श्योर दैट वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स एंड आवर एटीट्यूड एंड सी, ऐसे हम तो नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज अस वे बेटर देन वी नो आवरसेल्व्स, राइट? तो मेक श्योर दैट वी व्हेन वी आर लिसनिंग एंड वी आर reading and we are coming like across these ayahs, we need to remind ourselves that these मेरे से बात हो रही है, ये मेरे से बात हो रही है 153 में, डायरेक्ट टॉक है, दिस इज नॉट अ, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच ऑफ अल्लाह, राइट? बिल्कुल डायरेक्टली मेरे से बात है, इसमें कोई मैसेज है मेरे लिए, अलहदा सा मैसेज। आपके लिए एक और मैसेज होगा आया नंबर 153 में, मेरे लिए भी एक मैसेज है, उसमें से हमने निकालना है कौन सा मैसेज मेरे लिए, नहीं? सो अब अहलुल किताब क्या कहते हैं कि अभी किताब आसमान से आई है, वो पूछते हैं मूसा से, इवन बिगर देन दैट, बुक आ चुकी है, इवन देन बुक आ चुकी है, इवन देन यू आर नाउ आस्किंग फॉर द मिरेकल्स। अरीना फ़क़ालू, वो कहते हैं अरीना अल्लाह, वी सॉ अल्लाह जहरतन, और हमने अल्लाह को बिल्कुल हमारे सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला आए। लाइक इमेजिन कि ऑडेसिटी उनकी चेक करें कि वो सारे आपको मिरेकल्स मिल रहे हैं, लेकिन अगेन जिसने नहीं बिलीव करना वो नहीं करना। जितनी मर्जी क्लासेस में आप चले जाएं, अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो वो नहीं है ठीक। We are going to think about this thing, what I said. It does not matter how much word to word you have done, my dear sisters. It doesn't matter. It doesn't matter how much knowledge you have. क्योंकि you need to remind, and I need to remind myself, people of book, Jews were the most learned people of that time. उनको किताबें उसी तरह रटी होती हैं जिस तरह किसी मेडिसिन के बंदे को रटी होती हैं यहाँ पर, right? So we need to tell ourselves, it was not about the knowledge they had. They were very knowledgeable. They knew everything. Problem is whether आपको पूरी तो आ गई सूरह आले इमरान की पूरा का पूरा आपको वर्ड टू वर्ड आ गया, are you able to apply that or not, right? And then Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning, उनको ले लिया साइका ने, which is the thunderstorm, which is the a bad storm. Why did it happen? उनके जुल्म की वजह से, meaning they were not able to put things where they belong, right? सुम्मा तखज़ू, उसके बाद क्या किया? अभी यहाँ पे नहीं रुके, पहले वो वाला इंसिडेंट हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मेंशन किया, फिर क्या किया? फिर उन्होंने एक एजल बना लिया। मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात, आयात बय्यिनात सारी आ रही हैं, सारे मिरेकल्स बैक टू बैक आ रहे हैं, लेकिन नो, दे आर नॉट स्टॉपिंग देयर। एंड फिर हमने फाउना जालिक, उसके बाद भी हमने माफ किया। व आतीना मूसा सुल्तान मुबीना, वी गेव मूसा क्लियर साइंस आ रहे हैं सबके सामने। सारा दिन, सारा टाइम, we talk, we walk, we type, we think, we are being given आयात बैक टू बैक। और अगर अपने हाथों को मूव करते हुए हाथों को देखें अपने, अब आप जिस तरह बैठे हुए हैं वो देखें कैसे फोल्डिंग, लाइक हाउ यू टॉक, जस्ट सी। उसके बाद भी द एटीट्यूड हैज बीन द सेम। फाउना में अनजालिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला इज मेंशनिंग, उन्होंने भी ये किया, फिर भी हमने उनको माफ कर दिया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने तूर उनके ऊपर लेकर आए, फिर हमने उनसे, फिर वी सेड टू देम बाबा सुजदा, उदखुलुल बाबा सुजदा, एंटर द सिटी ऑफ जेरूसलम। आई एम होपिंग मेनी ऑफ यू गाइस आर एक्चुअली अवेयर ऑफ the history of Bani Israel. If not, inshallah I will send a poll in the group so that we should all know कि क्या हिस्ट्री थी, कहाँ से आए हैं ये, कहाँ से वाक्य, क्या क्या वाक्यात थे, ठीक है? लेकिन अभी का वो चूंकि टॉपिक नहीं है, so inshallah we, अगर I'm just gonna run through it quick.
और फिर हमने कहा कि सब्त में डोंट तादू, डोंट शो ट्रांसग्रेशन इन द मैटर ऑफ सब्त। जब कहा गया है कि सैटरडे को कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना, लिसन, एक्ट ऑन इट। लेकिन नहीं, वो भी किया। और फिर हमने उनसे मीसाकुन गलीजा, एक कॉन्वेनेंट लिया। फबीमा, यहाँ पे आई वांट यू टू थिंक एंड लिसन टू दिस वन। उनकी वजह से, फबीमा नक़दिहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम आयातिल्लाहि, उनकी इस वजह से, किस वजह से कि उन्होंने मीसाक तोड़ा, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार किया। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम ये कह दें कि हम इसको नहीं मानते आयत को। इसका मतलब ये होता है दैट मीन्स दैट यू, बाय योर एक्शंस यू आर शोइंग दैट यू एक्चुअली डोंट केयर अबाउट इट, एंड वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। ऐसा तो नहीं कि हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं। सो वी नीड टू कीप थिंकिंग अबाउट द लेसन दैट यू आर टेकिंग। ऐसा तो नहीं होता कि मैंने अभी मीसाक, कौन सा हो सकता है मीसाक, अभी आपने ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम दिया है, आपने उसमें मेंशन किया है कि आप लॉ, यू आर गोना बी अबाइडिंग द लॉज एंड वट एवर कंट्री यू आर इन। और आप उसकी बात सुनते हैं, नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते, राइट? आपने अभी अपना जॉब साइन किया जिसमें आपको बताया गया कि आपने दिस टाइम टू दिस टाइम यू आर 4 to 7 आपने कुरान पढ़ाना है, लाइक यू आर अ कुरानिक टीचर। एंड इंस्टेड ऑफ दैट आपका, अब हमेशा लेट हो जाते हैं। और आप अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उतनी नहीं कर रहे जितनी होनी चाहिए, राइट? सो दीज आर ऑल द मीसाक को ब्रेक करना। मेरे लिए आया 55 में मैंने क्या लेना है, हाउ आर द वेज आई एम नॉट एबल टू commit to what I signed up for. So that can be anything, as I mentioned. कुफ्रिहिम बी आयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरिल हक़, ये एक अलग सा स्टेप आ गया कि बिक़त्लिहिम, के विदाउट एनी राइट्स दे आर किलिंग द prophets of Allah। व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ, वी डिड बिकॉज ऑफ दीज इज ब्लिंक 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 ब्लिंक, ये आपके पास 3-4 चीजें आई, राइट? और उनकी इसके कहने की वजह से क्या किया फिर हमने, बल तौबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके, सुभान अल्लाह, तबा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी जो सील हमने की है वो इसकी वजह से की है, उनकी वजह से की है। बिकुफ्रिहिम, उनके इस सारे एक्ट की वजह से, दिस इज व्हाट इज बीइंग डन टू देम by Allah subhanahu wa ta'ala. Why so? Because of what they have been doing, what the attitude will, their attitude has been. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى मरियम बहताना नज़ीमा, और उनकी इसी बाला, लुक एट द वर्ड बाय कुफ्रिहिम, बार बार ये कुफर का वर्ड आएगा। एंड अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि कुफर का मतलब आप बिल्कुल ब्लैंकली, वेरी विजिबली यू आर डिनाइंग द आयर्स। नो, वी डू दैट इन मेनी मेनी वेज। We tend to do it in many many ways that you, yes, Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to say, not take riba. Yeah, so we do it in many ways. What are the ways that we can, like, ये आगे आयतों में भी आएगा कि ये जो आपने आयतें यहाँ पे पढ़ी थी, वआखिज़िहिमुर रिबा वक़द नुहु अन्हु वअक्लिहिम अम्वालिन नासि बिल बातिल वअतदना लिल काफिरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा। मीनिंग आप इसमें से क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं कि बनी इसराइल ये उनके एटीट्यूड था। और हाउ डू वी डू इट, लाइक आई डोंट इवन नो कि मेरे घर में जो the risk is coming, if I am being like given a credit card by my husband, what is the backstory of this card, meaning what is going on in the background, if you are not aware and if you do not care. So that is what is called your attitude. That is the attitude where there's an issue with that, right? And that is why that you are going to fall in that category then, that why, what are they doing। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं अब आगे थोड़ा सा जाते हुए, ये क्योंकि ये वाला वाक़या था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ना, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू, दिस वेरी इजी, कि दे वर रेस्ड बल रफ़ा अल्लाहु अलैहि, अपनी तरफ रेस किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौती व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, एंड ही विल बी विटनेस ओवर देम फबिज़ुल्मिम। बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे व्हाट एवर कम्स टू अस is the result of our own deeds. You're going to notice that in these 2 pages, we have been mentioning whatever sufferings or the tests and trials that are coming to us. I'm not saying all of them, but we need to hold ourselves accountable. It's not something that we should be very easy about, right? लाकिन रासिखून फिल इल्मी मिनहुम, लेकिन जो रासिख हैं उनमें से, इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज,
वल मोमिनूना, और जो यकीन रखते हैं, वट एवर इज सेंट टू यू एंड वट एवर इज सेंट बिफोर देम, और जो कि नमाज कायम करते हैं, द वन हु एस्टैब्लिश द प्रेयर एंड द वन हु गिव द ज़का एंड द वन हु बिलीव इन अल्लाह एंड द यौमिल आखिर, ulaika, those are the ones, not what you think, you like who's going to be given Jannah, Jahannam, or Allah subhanahu wa ta'ala is going to reward them. No, that is not the criteria, is not should be dictated by us. It is Allah subhanahu wa ta'ala ने बिल्कुल clearly बता दिए, आपको brain cells use करने की जरूरत नहीं है. Who is going to be getting what is being mentioned in Quran, right? कि किसको अज़ाबुल मुहीना मिलेगा, किसको क्या मिलेगा. So beautiful. Quran sets us in our where we belong, right? At least this is what we should be taking from it. Ulaika, those are the ones. We will give them ajr. Not only ajr, it is going to be azim. This ajr is going to be ajran azima. It is going to be a big ajr. So I am going to think, like I'm going to talk about two things here, okay? So the one is the one that I mentioned to you in this part, in this slide, right? We are rasikhuna fil ilm. Who are these people? Kyunki we are going to remind ourselves about many, many things, inshallah, when we'll be going through these slides. Before that, I actually want to go over this part. Kulubuna gulf. कुलूबना गुल्फ का क्या मतलब होता है? दैट आर हार्ट्स आर सील्ड, राइट. इसका मतलब ये होता है, यही पढ़ा था ना आपने, कि गुल्फ का मतलब, गलाफ का मतलब, ये इन उर्दू लैंग्वेज एक्चुअली दिस इज द कंफर्टर, और दिस इज लाइक योर रजाई, और दिस इज लाइक यू व्हाटएवर यू आर पुटिंग टू हाइड योर सेल्फ. ऐसे ही है ना, गुल्फ का मतलब ही ये होता है, गलाफ की तरह. जैसे तकिए का भी गलाफ होता है, लाइक पिलो कवर, दैट इज लाइक दैट. व्हाट इज मेंट बाय दैट कुलूबना गुल्फ? that these people are, they used to say, okay, you know what, we are very knowledgeable, and they are not wrong about it. They had a lot of knowledge. वो एक अलग बात है that their knowledge is not being translated into amal. That is one thing, but they used to give these statements. Okay, so now I'm going to think, I'm going to ask myself, what is the way, what are the ways I also say this statement, Kolubuna Wolf, and I want you to think about it. When are the different timings when you say, okay, you know what, I'm done, मुझे पता है ज़्यादा, मुझे, मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, ये इस तरह तो होता है, लेकिन आई थिंक नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. दीन को अपनी तरफ से लेना और अपने आप को ये बताना कि कि आई एम जस्ट डन. मैं कोई रिसेप्टिविटी, जो ये दिस व्हाट इज कॉल्ड द, यू आर ब्लॉकिंग एनी गाइडेंस टू रीच यू बिकॉज यू आर ऑल फुल. ऑब्वियसली वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स. अगर आपने जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कोई ग्लास फुल करना है, राइट, आई एम आस्किंग यू, तो यू आर सपोज टू फिल अ ग्लास, और द ग्लास इज ऑलरेडी फुल ऑफ जूस, या. सो अब आपने अपने आप से, अब आप पूछेंगे हाउ टू फिल दिस थिंग बिकॉज इज ऑलरेडी फुल. नहीं कि तो ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं इसको कैसे भरूँ, इसमें क्या डालना है मैंने, राइट. आप अपने, ये क्वेश्चन बनता है ना, लाइक बिल्कुल हमारा भी ये हाल होता है. We tend to saturate ourselves with many, many things which are not supposed to be there where they are being placed by us. कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं हमारे दिमाग, हार्ट्स को, किस तरह हम कैसे इसको वोल्व करते हैं. नॉलेज तो बात की बात, नॉलेज तो बहुत ही कम होता है, लेकिन होता है नॉलेज भी. ये जो इंटेलेक्चुअली हाई होना होता है ना, दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट. व्हाट इज मेंट बाय दैट? ओके, सो सॉरी. हम्म व्हाट इज मेंट बाय दैट कि आपका, एक मिनट, जस्ट गिव मी जस्ट 1 second. A very good student of ours is not able to join. Just ओके. सो क्या मतलब होता है कि एक तो होता है कि वो जो बिला वजह का नॉलेज होता है विच डज नॉट हैव एनी, आप यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट योर नॉलेज इनटू एनी एक्शन. और एक हमने बात याद रखनी है, जो इल्म, अगेन इट्स एन उर्दू स्टेटमेंट, जो इल्म अमल में नहीं ना ढलता. जो इल्म अमल में नहीं ढलता, वो किधर जाता है? वो नफाक में ढल जाता है. देन यू आर व्हाट इज, आप उस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं. जो इल्म अमल में नहीं जाता वो नफाक में चला जाता है. यू नो अ लॉट, बट योर स्टेटमेंट्स इनसाइड एंड आउट, दे डोंट टॉक, दे डोंट मैच, राइट. सो वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि जो अपने, अगर कुछ लेना होता है, कोई नॉलेज गेन करना होता है, कोई रिसेप्टिविटी, अपने अपना दरवाज़ा खोलना होता है,
यू नीड टू एम्प्टी दैट प्लेस, राइट? आप कमरे को नहीं भर सकते अगर आपने पूरा फर्नीचर उसमें भरा हुआ है पहले से। उसको उसको वो कुछ नहीं कर सकेंगे उधर। कौन कौन सी चीज़ें हमें भरती हैं? ये हमारे ईगो हो सकती है, हमारे डिज़ायर्स हो सकती हैं, हमारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, हमारी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। समटाइम्स आपकी लिस्ट में, इन द वीकली लिस्ट में, वे मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू ताला के मुकाबले में देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट दैट कम्स। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कि मैंने घर को सजाना है, या मैंने घर के लिए ये चीज़ें लेनी है, या मैंने एक, तो हमने, जैसा मैं हमेशा कह रही होती हूँ, हमारे बच्चे और जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं, सुभान अल्लाह, वो बेचारों को हमने काफ़ी टारगेट रखा होता है। उन बेचारों के कंधों पे रख के जितने हम बहाने बनाते हैं, वो एक नई स्टोरी है। सो वी आर सपोज टू रिमाइंड आवरसेल्व्स अबाउट द डिफरेंट नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? समीअन अलीमा, ये क्या बातें हैं, ये क्यों है समीअन अलीमा? अल्लाह नोज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अल्लाह इज सो वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज इन आवर हार्ट एंड व्हाट इज इन आवर माइंड, राइट? सो हमने अपने दिलों को ग्रजेस, नेगेटिविटी ऑल द टाइम, आप में, मेरे में अगर ये एबिलिटी नहीं है कि मैंने फिल्टर कैसे करना है चीज़ों को, सो वी आर गोइंग टू फिल आवर हार्ट्स with the stuff which is junk, which is कूड़ा, essentially trash। इस ट्रैश ने अगर आपके पूरे के पूरे कमरे को भरा हुआ है, इट्स नॉट, यू वोंट बी एबल टू एब्जॉर्ब गुडनेस देन, माय डियर सिस्टर्स। आप नहीं वो ले सकेंगे जो कि आप बहुत अच्छा ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन, फ्रेंड्स का सर्कल एक ऐसा बन जाता है कभी कभी, या आपकी कंपनी ऐसी हो जाती है, या आपके जो चीज़ें, मीनिंग के मैनी मैनी हैव आर, हमारे वीक पॉइंट ऐसे होता है कि ससुराल वाले आ गए, सपोज करें, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा हमारे साथ अटैच होती है चीज़ें, क्योंकि हमें ना चीज़ों को वहाँ पे रखना नहीं आता जहाँ पे वो बिलोंग करती हैं। फिर हमारी जो नन क्या कह के गई हैं, सास ने क्या कहा था, फिर उनकी सास की भी एक बहन होती है जो कि वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर मैंने मुख्तलिफ चीज़ें, हमें ये एबिलिटी हम लूज कर जाते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। फिर हम उनकी किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर अपने घर में जो तूफान खड़ा करते हैं, दैट इज़ वेरी सिली ऑफ अस। वो बहुत अजीब बात होती है। आप ऐसे माहौल में कुछ गेन नहीं कर सकते जितना मर्जी कुरान पढ़ें आप। यू यू वोंट बी एबल टू गेन। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि किसके बच्चे ने क्या किया है, और वो कौन से कॉलेज में जा रहा है, और वो उनकी शादी कब हो रही है, या ऐसी खराफात से भरते हैं, देन यू आर डन, आप फुल हो चुके हैं। अब आपके पास एबिलिटी जो है ना, वो आपका दिल बेचारा थक गया है, वो उसमें क्या क्या कुछ भरना है, आपने दिमाग में क्या क्या कुछ आना है। तो मेक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज this attitude that I am full, I so many things are going on in my life। अल्लाह सुब्हान ताला बाद में आते हैं, पहले मैं ये पहले कर लूँ, मेरे बड़े मसले बड़े चल रहे हैं कि दिस आर नॉट समथिंग दैट वी शुड बी वेरी प्राउड अबाउट। बहुत सोचना है इसके मुतालिक, ओके? सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट वेरी केयरफुली। ओके, सो नाउ आई वांट ऑल ऑफ अस टू, फॉर द रासिखूना फिल इल्म, राइट? व्हाट इज रासिखूना फिल इल्म? उसके ऊपर बात करने से पहले आई वांट यू टू इमेजिन दिस थिंग। आप अपने ट्रीज, यू जस्ट imagine you are looking at the tree, and you are loving it, you are liking it, but we need to remind ourselves ये ट्री आया कहाँ से था, राइट? हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है, ये कोई खुद से एक दिन से नहीं खड़ा हुआ, राइट? इट इज अ प्रोसेस। इसमें बहुत जान लगती है, इसको, इट हैज टू गो थ्रू मेनी चेंजेस, राइट? तब आपको ये ट्री इतना बड़ा सा, जो फुल ऑफ फ्रूट्स एंड फुल ऑफ लीव्स है, तब नजर आता है। And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran many times, look, see roof fil earth, look, go outside, look, ayatin bayinat, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे होते हैं ना कि there are clear signs for all of us। वो कौन सी साइंस हैं? वो ये नहीं है कि आप खड़े होके, आपको आदत है कि आप 50 नफल पढ़ लेते हैं, या आप नमाज में बहुत लंबी दुआएं करते हैं, और लाइक वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ कि इबादत जो होती है ना, दैट इज नॉट जस्ट ये 3-4 मूवमेंट्स, इट्स नॉट दैट। ये इबादत नहीं होती है। जो इबादत होती है, वो आपने याद रखना, जो अब्द होता है ना, अब्द, यानी कि ये जो स्लेव ऑफ अल्लाह होता है ना, स्लेव ऑफ अल्लाह, उसकी जो क्वालिटीज होती है ना, रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट दोज क्वालिटीज जो कि कुरान में भी मेंशन्ड है। जो उसकी पहली क्वालिटी है ना, जो कुरान में मेंशन हुई है सूरह फुरकान में, यमशूना अलल अर्दी हौना, लाइक उसमें बहुत ह्यूमिलिटी होती है। वो बहुत हम्बल होता है जो अब्द होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि एक मेरा रब है और एक मेरा अब्द है। जब हमारे पास कुरान पढ़ने के बावजूद
कंपनी होने के बावजूद, आप मस्जिद के सामने रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद, when there is some issue and that we are not happy about it, वो हमारा दिल बेचैन है, दिल में there are lots of questions and you want to improve yourself, क्योंकि you guy we need to remind ourselves, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको, आपको, कोई भी बंदा होता है, किसी भी आप पार्टी में जाएं, कोई बंदा बहुत ऑफ बातें कर रहा होता है, कोई भी बंदा होता है, जो कोई भी आपको एनकाउंटर आप करते हैं, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ सब में खैर है, हर कोई खैर से भरा हुआ है, हर एक में एक अलग सेट ऑफ वीक पॉइंट्स हैं, यस दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बंदे नेगेटिव होते, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही हमारी हमारी ना एक सोची छोटी सोच वाली बात हो जाती है, अगर हमें ये लगे कि इफ वी स्टार्ट थिंकिंग कि वो है ही ऐसा, like he is or she is supposed, because there is some issue with them. No, every one of us has ability to improve, और we are going to, और क्या आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, सीरा के अलावा आपको बेहतरीन एग्जाम्पल कौन मिल सकती है, लाइक उमर रदी अल्लाह ताला अनहु जो हैं, वो एक साइड पर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को क्लेम करके आ रहे हैं कि मैं आई एम गोइंग टू फिनिश हिम ऑफ, वो क्लेम करते हुए आ रहे हैं, और इसी इसी क्लेम करते करते वो उनकी तरफ जा रहे हैं, और like imagine करें the level of hatred that he must have for Islam and for Prophet, right? So if he is going there and within a blink of second his heart is changing, like ऐसे ही था ना कि हमने कैसे पढ़ा कि कौन कैसे सहाबा इकट्ठे हुए, कहाँ कहाँ से नहीं इकट्ठे हुए, खालिद उन वलीद कहाँ से आए हैं, वो आसमान से नहीं उतरे, ही वॉज द वन जो जिस जगह पे मुसलमानों के अगेंस्ट वो होते थे, दे मुस्लिम्स गॉट यूज टू गेट बीटन अप, राइट, मीनिंग हमने क्या लर्न करते हैं कि इसमें एफर्ट, इसमें एक प्रोसेस होता है जिससे लोग गुजरते हैं। हमने अब जब भी ट्री को देखना है, तो बैक टू रासिखूना फिल इल्म, ये ऐसा नहीं आता, इट गोज थ्रू सम स्टेप्स, राइट। हमें याद होना चाहिए ना कि एक सीड था, फिर वो प्लांट बना था, ये प्लांट बड़ा ही फ्लेक्सिबल था, जैसे ही हवा चलती थी इट वॉज एबल टू कीप हिम और हरसेल्फ स्ट्रॉन्ग, ये उस कंपनी में भी ये उधर ही खड़ा रहा, राइट। सो फिर हम आगे जब जाते हैं, फिर ये उसकी रूट्स बनती हैं, जो लोग ये रसखा का ये होता है जो फर्मली रूटेड, ये रूट दिन में नहीं बनती हैं, ये एक कुरान क्लास अटेंड करके नहीं बनती हैं, ये सिर्फ एक बंदे से मिलके नहीं बनती हैं, ये एक लेक्चर के बाद नहीं बनती है, ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप गो थ्रू करते हैं। मे अल्लाह सुब्हानहू तआला गिव ऑल ऑफ अस द एबिलिटी, वो प्रोसेस हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये बन जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे, वी इफ वी बिकम दिस, देन इंशाल्लाह यू विल नोटिस कि आप में से पॉजिटिविटी निकलती है, राइट। आप लोगों ने, वी आर ऑल गोइंग टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, इस काम के लिए एक पूरा का पूरा एक पैकेज आता है, कौन सा पैकेज होता है, वो क्या चीजें हैं जो कि हमारा रूट को स्ट्रॉन्ग कर जाएं कि हम खड़े रहें वहीं पर, राइट। हम ऐसा बनने के लिए वी नीड टू हैव दैट थिंग इन ourselves कि मैंने वैसा बनना है, राइट। और जब हमने ऐसा बनती हूँ कि हमें पता है उलाई का सनुती हूँ मजरा नजीम, मैंने वो बनना है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला अजरा, लाइक पहले तो बात ये होनी चाहिए कि वी रियली वांट टू बी वन, कि हु इज गेटिंग द अजरा नजीमा, राइट। पहले तो ये सवाल ये बनते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन बीइंग दैट, इफ यस देन वी नीड टू वर्क दीज few things that are in front of you, combine together, क्या क्या चीजें होती हैं, वी नीड टू गेट कनेक्टेड, ये जो कनेक्शन होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से, यू नीड टू डिस्कनेक्ट फॉर मेनी फ्रॉम मेनी थिंग्स टू गेट दिस कनेक्शन, दैट डिस्कनेक्शन कैन बी योर फेसबुक, जरूरी नहीं है कि आप उसके मियाँ ने क्या उसको गिफ्ट दिया और उसने क्या घर में खाना बनाया, वो आलू बैंगन थे, आलू गोश्त था, वो क्या था आपको पता हो। आप अपने आप को जब डिस्कनेक्ट करते हैं, एक चीज से अनशैकल करते हैं, उतारते हैं, तभी आप अल्लाह की तरफ जा सकते हैं। इस कनेक्शन को बढ़ाने के लिए यू नीड टू डिस्कनेक्ट, देखें वो कौन सी चीज है जो कि आपके इस कनेक्शन को ब्लॉक कर देती है, बार बार इस वायर को बिल्कुल ठीक करें, स्ट्रेच इट आउट एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू गेट कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू ताला। कभी कभी ये वाली चीज जो होती है जो कि हमारे कनेक्शन को ब्लॉक करती है, देयर कैन बी मेनी थिंग्स, आई एम जस्ट गिविंग यू द फ्यू एग्जांपल, जैसे कि सपोज करें कि आपका सोशल मीडिया है एक सबसे बड़ा शैतान, जो कि जितना ये टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, टॉडलर्स के लिए, आई विल हैव टू से टॉडलर्स के लिए तूफान बदतमीजी क्रिएट किए हुए हैं, आई वुड हैव टू से दिस इज इवन मोर ऑफ अ इशू विद फॉर द एडल्ट्स। हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं हो रहा, हमें लगता है कि जो टीनेजर्स जो हैं वो बहुत बिजी हैं, देर ऑन द फोन ऑल द टाइम,
So that is very visible. सारे everyone is talking about it, but what it is doing to us, we we are unable to see that. ये बिल्कुल हमारे घर का माहौल, हमारी जो सेल्फ टॉक होती है, हमारे जो सारी बच्चों की तरबिया होती है, हमारी अपनी तरबिया, सबको ब्लॉक कर रहा होता है, राइट? सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस वन. वी आर वर्किंग ऑन दिस विद द क्लैरिटी ऑफ आवर हार्ट. इफ योर हार्ट, इफ यू आर डूइंग समथिंग, यू आर अटेंडिंग क्लासेस क्योंकि आपकी टीचर क्या कहेंगी आपके मुतालिक, ये भी होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल लाउबाली हो, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर जस्ट वेरी केयर फ्री. नो, we need to be, as a student of Quran, we need to have some attitude, and then you are going to connect yourself to Quran, right? Okay, so and rasikhuna fil ilm. I want you, all of us, to remember these are not. This is not the only time in Surah Nisa that you are coming across these this phrase, right? So this is, you also went through this in ayah number 7 of Surah Al Imran, जो कि हमने पूरी पढ़ी हुई है. ये वाली कौन, इसमें क्या बात हो रही थी जब रासिखूना फिल्म की बात हुई थी? ये कौन सी बात थी? ये वो वाली बात थी जब हमने कहा था कि आई वॉन्ट यू टू वो, उर्दू और इंग्लिश में, मैं, आप उर्दू में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में मैं. इट इज ही हु हैज सेंट डाउन टू यू मोहम्मद द बुक. इन इट आर द वर्सेस प्रिसाइज, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द बुक, मीनिंग मुहकमात हैं, क्लियर कट. एंड अदर ones are not specific, unspecific. What is meant by unspecific? These are the ones, जैसे कि सपोज करें आपको सिरात पुल सिरात की अगर मैं बात करूं, आपका आइडिया और होगा, मेरा आइडिया और होगा. जन्नत की बात करूं, मेनी टाइम्स आपका आइडिया जन्नत को जब आप इमेजिन करते होंगे और होगा, मेरा आइडिया और होगा, राइट? सो दीज आर द, देर आर द टू क्लियर टाइप ऑफ, लाइक यू कैन सी कि जब आप आयात की बात करते हैं तो दोनों, दो डिफरेंट काइंड ऑफ आयात आप कुरान में देखते हैं. कुछ में बिल्कुल लॉज हैं, कुछ में ऐसा नहीं है कभी, जिसमें कुर्सी है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, जस्ट टू नेम, यदुल्लाह फौकाहुम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है. लाइक सुभान अल्लाह, ये आपने पढ़ा था कि जब हमने हुदैबिया की बात की थी, सुलह हुदैबिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जब उसकी बात की है तो ये मेंशन किया, ये कौन सा हाथ है अल्लाह का? यानी कि कुरान में दो तरीके की ये आते हैं. एज फॉर दोज इन हुज हार्ट इज डेविएशन, जो कि अल्लाह लाइक जिनमें प्रॉब्लम है, दे विल फॉलो दैट ऑफ विच इज अनस्पेसिफिक. उसी के मुतालिक बात करना है. ये कौन सा हाथ होता है, ये कौन सी कुर्सी होती है, ये क्या चीजें होती है, लाइक यू आर नॉट फोकस्ड ऑन व्हाट इज देयर फॉर यू टू फोकस ऑन. आप उधर निकल के जा रहे हैं, राइट? And no one knows its true interpretation except Allah. But those who are firm in knowledge, ये इनकी क्वालिटी है जो कि firmness इनको knowledge में होती है, we believe in it. All of it is from the Lord. कुल्लुन कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, ये सारा कुछ हमारे रब की तरफ से है. No one will be reminded except those of understanding. Meaning, इसमें भी आपने पढ़ा था कि जो रासखून होते हैं, जो कि सॉलिड होते हैं इन देयर नॉलेज, उनका कि उनकी जो क्वालिटीज में ये बात होती है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज द ग्रे पार्ट, और लाइक कि जिस अनक्लियर, जहाँ पे अनक्लैरिटी हो वहाँ पे फोकस नहीं करते. वो फोकस करते हैं जो कि प्रॉपरली प्रिसाइज उनको हुक्म मिला उस पर चलते हैं. अच्छा, फिर प्रॉब्लम ये, पर ये कैसे बनते हैं रासिखून फिल इल्म? जो इतनी बड़ी क्वालिटी है जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेंशन की है कुरान में, बार बार ये रासिख का वर्ड मेंशन हुआ है तकरीबन कपल ऑफ टाइम्स, दैट वी आर अवेयर, स्पेशली फ्रॉम दिस सेशन टुडे. कैसे बनते हैं? इसमें एक कमिटमेंट होती है, इसमें एक हार्डवर्क होता है, एक डेडिकेशन होती है. ये कैसे वो बनते हैं हम, ये सिंसियर डेडिकेशन, ये कौन, ये क्या नाम है? ये तो बहुत दफा पढ़ा हुआ है आपने, राइट? ये बड़े अच्छे वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये कैसे आता है? ये किस तरह चीजें आती हैं मेरे में आप में कैसे आएंगी? ये तब आएंगी जब आपको पता होगा, माय डियर सिस्टर, आपका गोल क्या है. आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि आपके बच्चों की शादियां हो जाएं? आपका गोल ये है कि आपके बच्चे मेडिकल कॉलेज में एंटर हो जाएं? या आपका गोल है कि आपका बेटा जो है ना वो सबसे बेहतरीन स्कूल में जाए? ये आपका गोल है? अगर, क्योंकि वी नीड टू आस्क, या फिर आप वो कैटेगरी हैं जिसका कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसे क्या करना, उसको नहीं पता, वो बस फ्लो विद द फ्लो वाला है, वो पता घूम रहा है. लाइक अगर आपको ये पता होगा, या फिर आप वो हैं जिसको फौरन पता है मैंने कहाँ जाना है, ये मेरा गोल है, ये आप ये कैटेगरी है, आपका गोल ही ऑफ है, आपको पता ही नहीं है सक्सेस क्या है, राइट? आपने अपने आप को बताया ही नहीं है कि व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट इज द गोल. जब आप, जैसा गोल होता है ना वैसे आपकी एफर्ट होती है. जो मेडिकल कॉलेज में जाने वाले बच्चे होते हैं, वो अगर उनको एम कैट की तैयारी करनी होती है, वो इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी नहीं करते हैं. ऐसे ही होता है ना, आप, हम सबको ये बात पता है. अगर आपने स्टैट्स का एग्जाम देना है तो आप उसमें बायोलॉजी पढ़ के नहीं जाते हैं.
अगर आपने उसमें उसकी डिग्री, जो डिग्री आपको चाहिए, वैसी आपकी एफर्ट होती है, वैसी आपका कोर्स होता है, राइट? सो वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ कि इसमें, और ये चीज़ें आपको बुक में नहीं, आपको प्लेट में नहीं मिलती हैं माय डियर सिस्टर्स। ये रासखूना फिल्म का टाइटल जो है, ऐसा नहीं होगा कि आप घर में बैठे चाय पीते जा रहे हैं या अपनी पार्टी करते जा रहे हैं और आपको अगले दिन बजले मुबारक हो, आपका नाम कुरान निकला है और आप रासखूना फिल्म में। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, बिल्कुल। जैसे कि आप अपने चाह रहे होते हैं, हम अपने बच्चों की एग्जांपल्स देखें कि अगर आपको ये पता हो कि आपका बच्चा बहुत स्मार्ट है, राइट? मैं आई वांट यू टू इमेजिन दिस थिंग। वो कैसे स्मार्ट है? ये नहीं होता कि कुछ सारे बच्चे पढ़ाई करके ही स्मार्ट आपको नजर आते हैं। नहीं, कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो उनमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सपोज करें कि वो बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपको पता है कि वो बच्चा बहुत स्मार्ट है और उसमें बहुत ही इज फुली एबल टू गेट टू दैट पर्टिकुलर गोल। कितना दुख होता है आपको अगर वो ना कर रहा हो तो। आप कितने इसराफ का शिकार होते हैं कि अगर आपका बच्चा वो कर सकता है, आपको पता है कि वो कर सकता है, यू नो इट, बट वो लावाली है, ही इज नॉट, ही डजंट केयर अबाउट इट। यही मैं माय डियर सिस्टर्स हमारा एटीट्यूड होता है लाइफ के साथ। यू कैन डू इट, यू डोंट एक्चुअली, यू डोंट वांट टू डू इट, बस वो हमारी लिस्ट में नहीं आता। वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में अल्लाह सुब्हानहू तआला बाद में आता है, वो है नहीं इस लिस्ट में। पहले मेरी लिस्ट में मेरे बच्चे आते हैं। हमारे एक ना सर्कल होता है, इस समय मैं भी बता रही थी आप सभी को, मैंने मेरा हाल है सभी से बात हुई थी, आई नीड टू मेक श्योर कि टाइम भी ठीक हो। आई वाज टेलिंग ऑल ऑफ अस के ग्रुप में भी कि जो अभी आपने हज का टाइम अभी आपने गुजारा था, ये क्या है? ये कि क्या कर रहे होते हैं हम जब किबले के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं? व्हाट आर वी रिमाइंडिंग आवरसेल्फ ऑफ? क्या होता है किबले के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना? इट इज द रिमाइंडर कि आप देखिए आपका किबला क्या है, उसी के मुताबिक आपकी एफर्ट होगी। आपका किबला क्या है? आपने पूछना है अपनी अभी अपने आप से, व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम दीज वर्ड टू वर्ड क्लासेस? यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ? इफ सो देन इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको वैसे ही देता है, उसके मुताबिक आपका हार्ड वर्क होता है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब गोल होता है उसके मुताबिक हमारी एफर्ट होती है। और उस गोल तक पहुंचने के लिए सबसे जो पहली बात, हमने एक कमिटमेंट होती है। जैसे कि आप बड़े लोग, आपको जब खाने बनाने के लिए अगर आपके घर में पार्टी हो, 12 डिशेस आप खड़े कर देते हैं उधर, क्योंकि आप कितने लाइक यू आर सो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको ये एबिलिटी दी है कि आप अपना घर भी मेंटेन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये एबिलिटी, दिस इज दीज आर ऑल द गुड थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि आपका सिर्फ अल्लाह जब गोल होता है तो वो आपने कुछ और नहीं करना होता, या आपने सिर्फ कुरान ही पढ़ना होता है या क्लास अटेंड कर, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। ये होता है कि फिर आपकी आप जो रासिख होता है ना, रासिखून फिल इल्म होते हैं ना, जो एक बात उनके मतलब याद रखनी है, उन्होंने जो इल्म होता है ना उसको खा लिया होता है, ऐसे इमेजिन करें। मीनिंग आई हैव एब्जॉर्ब्ड इट, डाइजेस्टेड इट फुली, वो मेरी बॉडी का पार्ट बन गया है। जस्ट ऐसा होता है उनका जो इल्म होता है ना, वो उनका पार्ट होता है। यानी कि जब वो बोलते हैं तो वो निकलता है, वो जब वो सुनते हैं तो उसमें से वो जो कुरान होता है उसमें उसकी आयतें नजर आ रही होती हैं आपको। जब वो कोई काम कर रहे होते हैं या वो डील कर रहे होते हैं, जब वो उठते हैं वो बैठते हैं, इबादुर रहमान वो ही बंदा होता है जिसके एक्शन में जो आप स्लेव वाली क्वालिटीज आती हैं। और पहली उसमें क्या होती है, उसमें उनको अपना गोल पता होता है। मेरा तो गोल है अल्लाह का चेहरा देखना उस दिन। जैसे कि मैं बहुत दफ़ा ये बात कहती हूँ क्योंकि मुझे ये बात, जब मैं इसके मुतालिक सोचती हूँ, मैंने तो वो चेहरा देखना है। इमेजिन करें, यू आर मुत्तकीन अला अराइक, आप उसके ऊपर टेक लगा के बैठे हुए हैं काउचेस के ऊपर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे पूछ रहे हैं जन्नत में, आप जन्नत में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आप वो इतने औसम इंसान है, आप जन्नत में पहुंच चुके हैं, और वो अल्लाह पूछ रहा है और क्या क्या कुछ और चाहिए? आप कहते हैं नहीं, वी आर गुड, वी आर फुल, और क्या चाहिए हो सकता है, वी आर डन, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? वो फिर पूछे आपसे और कुछ ना, यू आर गुड, क्योंकि वाकई आप गुड ही है। लाइक आपकी अकल इतनी है और हमारी अकल इतनी हो ना, हम यही कहेंगे ना, अल्लाह वी आर गुड, वी आर वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हियर, वी डोंट वांट एनीथिंग। एंड देन कम्स एक्चुअल मूवी। वो तो सिर्फ समझे कि वो तो सिर्फ वो क्या होते हैं, छोटे छोटे से क्लिप्स चल रहे थे, राइट? मूवी तो भी बाकी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपके सामने अगर अल्लाह का वो चेहरा आ जाए, जस्ट इमेजिन, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस थिंग। उधर तक पहुंचने के लिए जन्नत इज, टेल योर सेल्फ, जन्नत इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट फॉर फ्री। ऐसे ही नहीं है वो जन्नत, ऐसा नहीं मिलता कि आपकी स्टेटमेंट से आपने $200 किसी चैरिटी कंपनी को दे दिए, या $200 आपने अपनी नौकरानी को, नो, ₹200 आपने अपनी नौकरानी को दे दिए और आप समझने लग जाए मैंने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसके लिए चाहिए क्या चीज़ चाहिए? कि आपको सबसे पहले
ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी चाहिए। एंड आई वांट यू गाइस टू डू मी अ फेवर, ठीक है? अब आपने इस पिक्चर को देखें, हमारा जो प्रॉब्लम होता है, इस पिक्चर को देखें जो मैंने पिक्चर शेयर की है, राइट? आई वांट यू टू टाइप इन द चैट बॉक्स, ये कौन है? क्या लगता है ये वो, ये कौन है? क्या लग रहा है आपको, ये कौन बैठा हुआ है ऊपर? टेल मी इन द चैट बॉक्स, ये कौन बैठा हुआ है ऊपर? ये मुझे समझे समझें कि आप एक क्लासरूम में हैं, ठीक है? आपको ये लगता है? अच्छा, लेट्स सी। मैंने कुछ आंसर, ये किंग है, वेरी गुड जॉब। ये किंग कौन है? ये किंग कौन है और कौन होना चाहिए किंग? इज इट सॉर्ट ऑफ अ किंग? एब्सोल्युटली, दिस इज अ किंग। दिस is absolutely a king. But the problem is, this is the arrogant. He's very arrogant. Look at the style he has. Look at the way he is, like, he's dealing with the people around him. Unfortunately, unfortunately, ये आप हैं, समझे? Many times you will notice, and I am noticing many times, बजाय अब्द के ना मैं बन जाती हूँ किंग। मेरा ये एटीट्यूड हो जाता है, मीनिंग कि ये एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और ये उसके टीचर्स ने आके बैठे हुए खड़े हुए। ये हमारा एटीट्यूड होता है। मेनी टाइम्स यू विल नोटिस माय डियर सिस्टर्स, मेनी अ टाइम यू विल नोटिस कि आप ये हैं और टीचर आगे बैठा आपका वेट कर रहे हैं जूम का रूम खोल खोल के। सोचे, ये मैं भी करती हूँ। दिस इज ऑल ऑफ अस आर द सेम। मैं भी ये बात कर रही होती हूँ। ये एक एटीट्यूड होता है ना। जब हम बात कर रहे होते हैं ह्यूमिलिटी की, आपने ये बहुत बड़ा ब्लॉक आ जाता है। दिस इज समथिंग दैट इज अ बिग ब्लॉक in our connection with Allah subhanahu wa ta'ala. How you are dealing with the people around you, what do you think about yourself? This is something that we need to be very careful about. और आपको ये, I am sure कि आपको जब ये इससे बहुत इससे ये वाली जो एटीट्यूड होता है जिसमें आप अपने आप को बहुत समझ रहे होते हैं, मैं अपने आप को बहुत समझ रही हूँ, या मुझे मुझे ये लगता है कि कि आई एक्चुअली नो एवरीथिंग, या मेरे टीचर ने पहले मेरे से क्यों नहीं सुना और कितना सुना, एक ये बहुत, लाइक यू आर डिक्टेटिंग, यू स्टार्ट डिक्टेटिंग योर टीचर कि टीचर को कैसे करना चाहिए। आपको लगता है ये ह्यूमिलिटी होती है? ये नहीं हो सकती ह्यूमिलिटी। डू यू थिंक इस किस्म का एटीट्यूड, ऐसा पौधा जो कि ऐसे खड़ा होगा बिल्कुल अकड़ के, डू यू थिंक दिस टाइप ऑफ अ प्लांट कैन गेट इनटू दैट बिग ट्री? कैन these be the those strong roots? Absolutely not. No. नो, आप बिल्कुल भी इस, आपने अगर वहां तक पहुंचना है ना, अगर आपने वहां तक पहुंचना है तो वो मिट्टी बन जाए। कौन सी मिट्टी बन जाए? क्या चीज़ है ये मिट्टी? क्या चीज़ है जिसके मतलब मैं बात कर रही हूँ? एक मिनट, ये वाली, ये आपको पता है ना कि जब हम बात कर रहे होते हैं अब नाउ, आई वॉन्ट यू टू कीप दोज एग्जाम्पल्स इन माइंड। आई वॉन्ट यू टू कीप दैट ट्री इन योर माइंड। आई वॉन्ट यू टू कीप दैट little seed in your mind. I want you to keep that attitude that you have. अगर आपने वो चीज़ बनना है, जो अगर आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है कोई चीज़, अगर आपने वो रासिखूना फिल इल्म जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उलुल अलबाब के मुतालिक बात करते हैं, वो जो इबादुर रहमान होते हैं, वो कौन होते हैं? वो ये वाले होते हैं, ये वाली लैंड होती है। अबू हुरैरा की अबू सॉरी नरेटेड बाय अबू मूसा, ये प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की ये हदीस है कि जो लैंड होती है वो तीन टाइप की होती है। एक लैंड इज़ वेरी गुड लैंड, वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी एक्सेप्टेबल लैंड, वो बड़ी मीठी मिट्टी होती है। और फिर जो एक लैंड होती है जो कि ड्राई होती है। फिर एक लैंड होती है जो कि बिल्कुल रेजिस्टेंट, कुलूबना गुल्फ, मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, और मेरे मुझे ये बात पता है कि मैंने टीचर से, मेरे टीचर को मेरे से कैसे डील करना चाहिए। पहले मेरी टर्न आनी चाहिए, उसके बाद किसी और की। दीज आर द फ्यू लिटिल एग्जांपल्स। 5 मिनट के बाद रूम जूम क्यों खुलता है? ये तो बात, ऐसे तो नहीं होते जो इबादुर रहमान होते हैं, ऐसे तो नहीं होता उनका एटीट्यूड, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने क्लास खोली और उसमें सिर्फ 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं टीचर की तरफ से बात कर रही हूँ। 4 क्यों बैठे हैं जबकि मैंने पूरी क्लास के लिए मैंने तो खोला हुआ है, अगर टीचर के दिल में भी आने लग जाए, डू यू थिंक दैट टीचर, दैट पर्सन इज सपोज टू बी इन द इबादुर रहमान? नहीं, वो मिट्टी नहीं है वो। जब आपने कोई चीज़ अंदर जो आपका जो होता है ना ब्लेसिंग, अगर आपने रेन को, पानी को एब्जॉर्ब करना है, तो आपको तो मिट्टी बन जाना चाहिए जो कि सारा कुछ खा जाए। मीनिंग ऑल द गुडनेस इज गोइंग टू बी दैट लैंड इज एबल टू ग्रैब असेंशली सारा कुछ। तो वो उसके लिए वो कैसे बन सकते हैं आप, जब तक जब आपने एब्जॉर्ब करने की आप में एबिलिटी नहीं है तो, राइट? सो इन ऑर्डर टू बी दैट रासिख, कि कुरान में आपका जिक्र आ जाए, आपको वो टाइटल लग जाए, जस्ट इमेजिन कि आपको टाइटल मिल जाए, आपको ना, यू आर द ग्रुप ऑफ, देयर इज अ ग्रुप,
ओके, सो ये इसके इतने ग्रेड हैं, ये ए स्टार्स वाले हैं, ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं, वट एवर। आपका ग्रुप हो जाए कि इबादुर रहमान वाला, सो वी आर गोइंग टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ अ लैंड, you have to have that attitude, you have to have that type of a goal। आपकी एफर्ट भी वैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने, जैसा अभी मैंने मेंशन किया है, घर में बैठे बैठे हर काम करते हुए आपको लगे कि आपको पार्सल आने वाला है, कि यू नो व्हाट, माशाल्लाह से दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये आपका टाइटल है, ये आप क्राउन पहन के बैठ जाएं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, राइट। सो वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ इज एन एटीट्यूड। और मैं आपको इसी बात के ऊपर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस आया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहली दफ़ा मिल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का तो जो वाक़या है ना, वो ही इज़ द मोस्ट मेंशन्ड प्रॉफिट इन द कुरान, मोर देन 130 टाइम्स मूसा अलैहिस्सलाम विद हिज नेम इज मेंशन्ड इन एवरी अदर सूरा, इन एवरी अदर पारा यू विल सी मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा। वाई सो, कौन कौन सी, क्या क्यों वो मेंशन हुए में, उनकी ज़िंदगी के जो अराउंड जो वाक़यात हैं, वो इस तरह के हैं कि सुभान अल्लाह, वी नीड टू get so many lessons out of this, they what he encountered। I want you to now focus on this ayah, this part, this special passage of Quran। ठीक है, ये देखें क्या बात हो रही है। वहला ता का हदीस मूसा, हैज़ द न्यूज़ ऑफ मूसा रीच टू यू। जब उसने फायर देखी, फ़क़ौला, उन्होंने अपनी फैमिली को कहा, ये वाली बात है जब वो मदियन से निकलते हैं अपने साल पूरे करके, तो मदियन से निकल रहे हैं और वो फिर अपनी फैमिली को रास्ते में जा रहे हैं और वही दे लॉस्ट देयर वे। वो अपनी फैमिली को कहते हैं, कुसू, यू वेट हियर, मुझे कोई फायर नज़र आई है, मे बी मैं उसमें से कुछ पार्ट ले आऊँ और मुझे कुछ हिदायत मिल जाए, मैंने जाना कहाँ है, क्योंकि वी आर लॉस्ट इन दिस डेजर्ट नाउ, राइट। फलम्मा आता हा, जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उनको क्या आवाज आती है, ही इज कॉल्ड या मूसा। रात का टाइम है, एक आग लगी हुई है कहीं पर, राइट। और आप ऊपर चढ़े हैं उस वादी के, क्योंकि आपको वहां पे फायर जलती हुई नजर आई है और आपको लगता है कि वहां से कुछ आपको हिदायत मिल जाएगी। आपको एक आवाज आती है पीछे से, जस्ट इमेजिन, या मरियम, कोई आवाज आ जाती है। आप तो लाइक जस्ट इमेजिन दैट नाइट, दैट डार्क नाइट है ये, राइट। ये नहीं था कि हर जगह पे स्ट्रीट बल्ब्स लगे हैं एंड एवरीथिंग इज वेरी ब्राइट एंड वेरी शाइनी, नो, एक्सट्रीमली डार्क नाइट है। ये वो टाइम है जब हिस्ट्री चेंज करने लगी है अपने आप को। ऐसे ही था ना, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री। क्या होने लगा यहाँ पे, ओ मूसा, इंडीड आई एम योर लॉर्ड, ओ मूसा अना रब्बुक, मैं तुम्हारा रब हूँ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, आगे क्या आने वाला है, आप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉज दैट वी ऑल नीड टू टेक। कौन सा कमांड, पहला कमांड है, पहला कमांड क्या आने लगा, टेक ऑफ योर शूज, रिमूव योर सैंडल्स। ये पहला कमांड है मूसा अलैहि सलाम को। फहला नई लाइक ना अलैका, क्या ये, वी नीड टू ऑल टेक अ पॉज, ये क्या बात हो गई, जूते उतारे अपने, व्हाट, ये पहला कमांड है। ये सारा मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल की जितनी भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे लोग, ये था, यहाँ से हिस्ट्री का चेंज था। और पहला कमांड, कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी वो कहने वाली, क्या कमांड है, टेक ऑफ योर शूज। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन हियर, व्हाट इज द फर्स्ट कमांड। Allah subhanahu wa ta'ala is trying to tell many, there are many interpretation of this part of the Quran। और एक इंटरेस्टिंगली, बिल्कुल उसी तरह तौरा ने भी इसको, लाइक यू नो इट्स अमेजिंग, कि बिल्कुल उसी वर्ड के साथ तौरा में भी ये डोंट, डोंट कम नियर, टेक ऑफ योर सैंडल्स। पहला मूसा अलैहि सलाम को जब उन्होंने, तौरा में मेंशन्ड है ये बात कि टेक ऑफ योर शूज, इट्स नॉट ओनली इन कुरान, टेक योर सैंडल्स ऑफ योर फीट, राइट। सो उसमें मेंशन किया गया ये तो होली लैंड है, राइट। उसमें मेंशन क्या किया गया, तो होली लैंड है, सुभान अल्लाह, मेरा सुभान ताला गिव ऑल ऑफ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दिस थिंग। क्या मतलब होता है कि जो सबसे पहले डिवाइन नॉलेज को या किसी भी किस्म की हदायत को, एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, एनी काइंड ऑफ गुडनेस, इफ़ यू वांट टू एब्जॉर्ब इट, एंड आई वांट ऑल ऑफ अस टू एब्जॉर्ब इट, टू मेक दैट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, टू मेक दैट जस्ट खा जाए उसको, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। आपका आपके टीचर से, अब आपने, हम सब ने पूछना है, जब मैं बात कर रही होती हूँ अपने टीचर से, आई डू आई हैव दैट ह्यूमिलिटी, डू आई एक्ट लाइक दैट दिस। अब इसके अलावा जब तक आप अपने आप को, इस गिलास को खाली नहीं करेंगे ना, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर पहले से भर के जा रहे हैं ना, कुलूबुना गुल्फ, मुझे तो बहुत पता है, मैं तो बहुत ज़्यादा क्लासेस अटेंड कर चुकी हूँ पहले, मुझे तो सारा आता है, मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है। ये भी हमारे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो जो लोगों का वीक पॉइंट होता है ना, वी ट्राई टू मेंशन दैट। और बड़े अनफॉर्चुनेटली हमारे, क्योंकि हम सिली है ना, इंसान इज़ वेरी दाइफ, और ये कुरान में भी है,
राइट, वी आर वेरी वीक, सो वी डू हैव वीक पॉइंट्स, राइट, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि दीज आर द वी विल मेक दीज मिस्टेक्स। सो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को कोसने लग जाए। नो, अल्लाह सुब्हान ताला इज ऑल गफूर, ही इज वेरी मर्सीफुल, राइट। सो अल्लाह सुब्हान ताला में क्या बता रहे हैं कि जब कोई भी चीज़ करनी हो, कोई भी, स्पेशली जब नॉलेज की बात हो, तो क्या करना होता है, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गेट इन टू द पोजिशन, you need to know where you belong. You are not the Rab. I am your Rab, and take off your shoes, meaning इसको उतारो, मीनिंग कि अपनी पोजीशन को पहले समझो कि तुम एक अब्द की तरह हो। फॉलो सम एडिकेट्स। कुरानिक स्टूडेंट्स के भी बड़े एडिकेट्स होते हैं। हमें हर बात को बड़ा फॉलो करने का हमें तरीका आता है। हम जब सिटीजन होते हैं, बनते हैं, उसके लॉज को फॉलो करना, ड्राइविंग में बैठे हुए ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करना, हमारे को हमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बड़ी एबिलिटी दी होती है। जैसे ही कुरान के स्टूडेंट की बात आती है तो वहीं से हम ऑफ हो जाते हैं। हमें तरीका ही नहीं पता कि कुरान का स्टूडेंट जो होता है वो तो बड़ा ही स्पेशल स्टूडेंट होता है। वो आप बाकी जब कुरान क्लास में आते हैं, आप अपने जूते उतार के आते हैं। आप उस लेवल की, उस तरह की सॉफ्ट मिट्टी बन के आती। अब क्या बन के, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? अब मेरी क्लास शुरू हो गई है, अब 1 बजे टीचर का काम है कि वो रूम खोल दे, और मैंने अब मैंने जल्दी जल्दी मेरी बारी आनी चाहिए, और मैं ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए टीचर को, और लाइक यू नो व्हाट आर यू थिंकिंग, what what kind of attitude you come with is very important. बन जाए वो मिट्टी जो कि बन लाइक सारा कुछ एब्जॉर्ब कर जाए। जस्ट टेल योर सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी, ओ अल्लाह, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू वॉन्ट मी टू बी। वैसे बन जाए जैसे अल्लाह चाहता है। कितनी बड़ी दुआ है, राइट। वैसे बन जाए जैसे अल्लाह चाहता है, तो कितना ही अच्छा हो जाए हम वैसे बन जाए। तो इबादुर रहमान जो होते हैं, उनकी पहली क्वालिटी ये होती है, उनमें बहुत ह्यूमिलिटी होती है, राइट। ये बात नहीं भूलनी है कि मूसा अलैहिस्सलाम का पहला कमांड क्या था? जब हिस्ट्री को चेंज होना था, पहला कमांड क्या दिया? इट्स नॉट अबाउट ओ मूसा एस्टैब्लिश प्रेयर, नो। ज़कात देना, नो, इट्स नॉट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड इज वे डिफरेंट। पहले एटीट्यूड ठीक होता है, पहले आप अपने आप को उस पोजीशन पे लेके आते हैं, तब आप कुछ सीख पाते हैं, राइट। सो वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ अबाउट दिस ब्यूटीफुल इंसिडेंट। ओके, एंड देन वी कम, देन आप अच्छा, फिर इसके बाद ये वाले जो जब आपने कुछ सीख लिया होता है, देन आप उसको अप्लाई करते हैं लाइफ में, ऐसे ही है ना। फिर आपको, if you are, you have that attitude, you are getting connected to Allah subhanahu wa ta'ala, you are on it, meaning you are really on it. In order to be the rasikh, we need to keep asking ourselves a question, ये इल्म मेरे लिए कर्ज है कि मेरे लिए ब्लेसिंग है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी कभी हम इल्म को ना इंटेलेक्चुअल हाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीनिंग कि मैंने हर को बताना है कि ना मैं कुरान क्लासेस करती हूँ, जैसे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, राइट। हो जाता है, कभी गलती हो जाती है, मैं एक्स्ट्रा जब हम बात कर रहे होते हैं कभी कभी हो जाता है कि कि यू टेंड टू लूज योर सेल्फ, क्योंकि हम वीक है ना, हम वीक हैं। तो हमें बहुत बताने का शौक हो जाता है कभी कभी, कि हमें लोगों को पता चल जाए कि हम कुरान क्लास में जाते हैं, राइट। तो ये मेल आसान लगे वो ऑल ऑफ अस एबिलिटी देखें। जिससे मैं बार बार हमेशा बात कहती हूँ कि ना, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। अगर आपका प्रॉब्लम ये है कि आपने परफेक्ट होना है और आपने उस कुर्सी में बैठ जाना है, ये जब बीइंग परफेक्ट तो यही होगा ना कि आप इधर बैठे हुए हैं, ये आप ये हैं, तो ये फिर आपका ना ये एटीट्यूड ठीक ही नहीं है। It's not going to take you anywhere other than it will make, like, it will make your whatever you are doing a curse for you. You're gonna be like this. अपनी जड़ें नीचे से मजबूत हैं, बिल्कुल यूजलेस हैं बाकी लोगों के लिए। आप अब, it's not a blessing for you, it's just even making your life miserable. So we need to remind ourselves that apart from superficial things that we learn, we need to see a change in ourselves. और जिसमें जो पहली जो चेंज आती है ना, उसका जो पहला साइन होता है कि आप ट्रैक पे हैं, वो ये होता है कि यू स्टार्ट लुकिंग एट योर गलतियाँ, मेरे समथिंग जो कि आपने गलत, लाइक जहाँ पे आप ऑफ गए हैं, आप उसके ऊपर नज़र डालें। आपने कोई मसला नहीं होता गलती हो जाए, इट्स नॉट अबाउट बीइंग वेरी परफेक्ट। I never do any mistake, I am always on track. No, that is not true, and that cannot be the case. So we need to remind ourselves, my very dear sisters, Surah Nisa is a surah of Rahmah. Remember the meaning, like the names of the surah? It's a surah of Adl, right? It's a surah of Rahma, it's a surah of Adl, it's a surah of women, right? surah, ये सारी चीजें जो सारी ये हमारे लिए हैं। हम अपने आप को as women, we need to ask ourselves, what are the things that are going to make me say कि मैं कुलूबना गुल्फ, मैं गई उधर से, और कौन सी चीजें बेकुफरी हैं। मेरा एटीट्यूड जो है,
मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं कि मैं बिल्कुल फुल मैं बिल अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रही हैं हम। अगर ऐसा है, वी आर ऑन दैट ट्रैक दैट वी जस्ट नो एवरीथिंग और वी कैन नॉट मेक मिस्टेक, और कभी कभी ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, वी डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स। ओके, वो सो ये कैसे बात होती है कि यू कैन नॉट मेक मिस्टेक? ये बात भी ठीक नहीं है, राइट? सो वी नीड टू टेल आवरसेल्व्स यस वी कैन मेक मिस्टेक्स, एंड यस we can, we can say things which are not appropriate. Yes, we can text, and yes, we can um, look at somebody Facebook, and yes, we can do a mistake of going to Instagram and stalk other people. Yes, these things, all these things can happen, but मैं next time नहीं करूँगी। और अगर next time किया भी तो फौरन पलटें। It's not about being off track. It's not uh, आप में अगर आपको ये एबिलिटी आ गई ना, ट्रैक पर चढ़ जाते हैं बार बार, आप इतने स्मार्ट हैं कि इफ यू डू अ मिस्टेक, यू इमीडिएटली आप अपने आप को ठीक करके फिर सिराते मुस्तकीम पे पहुंच जाएं। इट्स नॉट, यू आर नॉट रेसिंग विद ईच अदर राइट नाउ, इट्स नॉट वट यू आर डूइंग, राइट? आपने कोशिश करनी है कि इफ देर इज समथिंग दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड लाइक इट यू डिड इट, आपने, हो गई है गलती, हो जाती है गलतियां, कभी कभी हो जाती हैं, कभी कभी आप सोचेंगे, अगर अपने आप को बैठ के देखेंगे तो आप सोचेंगे कि वो, ये कोई कहने वाली बात थी, ये कोई सोचने वाली बात थी, ये कौन से, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, कैसे कह दिया मैंने, ये मैं कैसे सोच रही हूँ ये बात। या ये जो चीजें होती है ना, आपको ये बात याद रखनी है, जब आपने इम्प्रूव करना होता है ना, एक सेल्फ टॉक जो होती है ना, वो आपका पहला स्टेप में आती है, ठीक है? तो इंशाल्लाह, वो सुभान अल्लाह, आई हैव ऑलरेडी टेकन एन आवर, सो इंशाल्लाह आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड ऑल ऑफ आवरसेल्व्स दैट वी नीड टू कीप प्रेइंग, अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना, अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना वालिमना मा यनफाउना। वो सिखा जो कि हमें फ़ायदा दे सके, वज़िदना इल्मा, और increase us in terms of our knowledge. And may Allah subhanahu wa ta'ala give all of us our ability, this ability to be the ones who are very close to Allah subhanahu wa ta'ala and who are the tawwabin, so that Allah can love us, right? We need an appreciation, we need recognition from everyone around us. We are so people conscious. We need to be Allah conscious. Ask yourself, मेरा अल्लाह क्या कहेगा? मैंने जो बात की है, मेरा अल्लाह क्या सोचे, मेरा अल्लाह क्या इस टाइम मैंने क्या की है? मैं, एम आई द दैट बेस्ट वुमेन दैट आई वांट टू बी? यू वी ऑल वांट टू बी द बेस्ट, राइट? नो मैटर हाउ वी आर, बट वी वांट टू बी द बेस्ट। सो डू आई डिजर्व दैट? कैन आई हैव दैट टाइटल? राइट? सो वी ऑल नीड टू बी, कैन आई बी द रासखून फिल्म? मैं उसमें शामिल हो जा सकती हूँ। सो वी नीड टू आस्क, इट्स नॉट अब इम्पोर्टेंट इफ यू आर द पार्टी का सब पहला बंदा इनवाइटेड आप हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट थिंग विद यू। सुबहान अल्लाह, कभी कभी जब आप पार्टी में नहीं इनवाइटेड होते हैं, वो आपके लिए ब्लेसिंग होती है, नहीं? और कभी कभी नहीं, एक्चुअली हमेशा ही ब्लेसिंग होती है, हमेशा ही वो ब्लेसिंग का पार्ट होता है, क्योंकि समथिंग यू आइदर यू आर गोना डू ऑफ देयर, और this party is not it's not beneficial for you. Sometimes it may happen, you may think about other people like the way you should not, meaning that is not good for you. So accept it in a very graceful way, right? So with that reminders, inshallah, we can end our session, and I will try my best to keep on coming like this Sundays, inshallah, and I will be ending our recording here, then I will open the discussion for you all, okay, inshallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear sisters. And my recording is done, but I want to hear from you any reflection from the part of ayahs that we covered, okay, inshallah. Stop the recording, let's see.